Alright, so hi everyone, a very good morning to all of you and welcome back once again to another class of government schemes. In today's class, we are going to cover a very important scheme from the Ministry of Social Justice and Empowerment, and indeed it's a very important scheme because it contains 5 sub schemes, right? It contains 5 sub schemes and that is why it becomes really very important and all of these sub schemes are really very important. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पीएम यशस्वी स्कीम of the Ministry of Social Justice and Empowerment. First of all, let me tell you the full form. It's Prime Minister Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India. Prime Minister Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India. So this scheme is majorly for providing scholarship to the underserved and unserved sections of the society, right? And who are these underserved and unserved sections of the society? We are going to talk about them one by one, right? Basically इसमें सरकार ने क्या करा था, देयर वर 5 schemes which were being implemented before 2021-22. So when the 15th finance commission period started, so what government did was the government combined all these 5 related schemes, and one umbrella scheme was created, and that umbrella scheme is known as what? PM Yashasvi. And duration for this scheme is also, my dear friends, till 2025-26. In fact, all schemes, all centrally sponsored and central sector schemes shall be revised on 1st of April 2026, because of the beginning of the 16th फाइनेंस कमीशन. जैसे ही 16th फाइनेंस कमीशन आएगा, सारी स्कीम्स पे रिवीजन होगी, सारी स्कीम्स को अप्रूव किया जाएगा फॉर देयर एक्सटेंशन. सिमिलरली जैसे 15th फाइनेंस कमीशन स्टार्ट हुआ, ये जो 5 स्कीम्स थी ऑलरेडी चल रही थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, इनको क्लब करके एक स्कीम बना दी गई जिसका नाम रखा गया पीएम यशस्वी, विच स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया. All right, and the objective, my dear friends, is to uplift students from OBC, EBC and DNT by providing access to quality education during their formative years. Now formative years का मतलब प्राइमरी या प्री प्राइमरी नहीं है, formative years का मतलब यहाँ पे है 9, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, इस तरीके का, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 9, 10th, right? So now the 3 types of beneficiaries, as you can see, are OBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड डीनोटिफाइड ट्राइब्स. ठीक है, तो जो मैं अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड सेक्शंस की बात कर रहा था, दीज आर ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटीज, राइट? दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 21-22 एंड ऑफ कोर्स इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ठीक है, and as I told you, there are 5 sub schemes. There are 5 sub schemes under this particular scheme. So we'll talk about all these sub schemes one by one. The very first is centrally sponsored scheme of pre-metric scholarship for OBC, EBC and DNT students. First of all, it is a centrally sponsored scheme, which means the funding will be shared between the center and the respective state governments. It is a scholarship but pre-metric. Pre-metric मतलब 10वीं या उससे पहले, and the beneficiaries are OBC, EBC and DNT, right? So obviously the objective is to motivate children of these categories for studies by providing financial assistance at the pre-matriculation or secondary stage. ठीक है, the scholarship under this particular scheme shall be made available only to the students who are studying in India, and the scholarship will only be provided to the students who are going to the government schools only, right? Of course the government will not provide support to the students who are in private school, because if they can afford to go to the private school, they do not need the support from the government. All right, eligibility की बात करें, so the parental income or the guardian's income should not exceed rupees 2,50,000 per annum. The student should be studying in class 9th and 10th on a full time basis, and दो चीजें ऑलरेडी बता दी है मैंने आपको. The student must be in the government school only, and he must be studying in India. ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स में ही होना चाहिए. A scholarship holder under this scheme will not hold any other educational scholarship to study in classes 9th and 10th. अगर ऑलरेडी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रखी है किसी और स्कीम में, then he is not eligible, he or she is not eligible, and the scholarship will only be made available for 1 year. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पहले 9th में स्कॉलरशिप मिली, ठीक है, और उसके बाद फेल हो गए 9th में तो दोबारा मिलेगी 9th में, नहीं, ऐसा नहीं होगा. Why would government provide scholarship to a student who is not working hard, to a student who is not performing well? ठीक है, so the scholarship will only be provided for a 1 year period. 9th में एक बार, 10वीं में एक बार, बार बार रिपीटेशन नहीं मिलेगा. अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप क्या है जी? 4,000 पर मंथ है, ₹4,000 per month, and the amount once made will be payable until the student classes pass
until the student passes the class 10th, जब तक 10वीं पास नहीं कर जाता उसको तब तक वो मिलेगा। बट ऑफ कोर्स 10वीं पास करने का मतलब ये नहीं है कि पंचवर्षीय योजना लगा ली है स्टूडेंट ने कि 5 साल में 10वीं पास करेंगे और हर महीने 4000 लेते रहेंगे, ऐसा नहीं है, right? And it is also subjected to satisfactory academic performance, as I already told you, and an attendance of 75% in every academic year. 75% अटेंडेंस होनी चाहिए तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। There are certain other conditions. So if a student violates any school discipline or any other terms and condition of the scholarship may be suspended or even cancelled, ठीक है। अगर बदतमीजी करता है, स्कूल डिसिप्लिन नहीं है, तो उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल की जा सकती है। द माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन और वन स्कूल टू अनदर स्कूल is normally not allowed under this particular scheme, but in certain special cases of course the government can allow. Only two boys of the same parents or guardians will be entitled to receive the scholarship, thereby promoting हम दो हमारे दो. However, this restriction will not apply to the girls. ये restrictions girls के लिए apply नहीं होती, लड़के हैं तो दो ही मिलेंगे और लड़कियां हैं तो ऐसी कोई restriction नहीं है, right? At least 5% of students with disability should be covered, right? मतलब अगर 100 लोगों को स्कॉलरशिप दिया है तो उसमें से 5 लोग जो है वो 5 स्टूडेंट्स जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होने चाहिए, एंड द 30% ऑफ द बेनिफिशियरी शुड बी गर्ल स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। दैट वाज सब स्कीम नंबर 1। लेट्स मूव अहेड टू द सब स्कीम नंबर 2। सो द सब स्कीम नंबर 1 वाज द प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है। नाउ द स्कीम नंबर 2, द सब स्कीम नंबर 2 इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी कि 10वीं के बाद फॉर ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट्स, ठीक है जी, क्लियर है। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट्स स्टडिंग एट पोस्ट मैट्रिकुलेशन और पोस्ट सेकेंडरी स्टेज टू एनेबल देम टू कंप्लीट देयर एजुकेशन। 10वीं के बाद एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू द ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट, ठीक है। द स्कोप, obviously the scholarship will only be available for studies in India and will be awarded by the government of the state or union territory to which the applicant actually belongs. अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन का काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट्स का है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कोर्स इसमें फंडिंग देगी, पैसा देगी, जो भी शेयर होगा, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन का काम है वो किसका है जी? स्टेट गवर्नमेंट्स का, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? पोस्ट ग्रेजुएशन को स्टूडेंट्स परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, अगर 10वीं के बाद अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में है इन मेडिसिन, then the scholarship will only be provided if they are not allowed to practice during the period of their course, ठीक है। because of course if they are practicing, ठीक है, मान लेते हैं कि एमबीबीएस कर लिया, अब वो एमडी कर रहे हैं, if they are practicing then of course they must be earning a good amount of money, then the government of course will not provide any kind of scholarship to such students, right? Again, only 2 boys of the same parent or guardian will be eligible and this restriction will not be applied to the girl students, ठीक है। the scholarship holder must not hold any other scholarship or stipend, income criteria वही है 2.5 लाख पर annum, चाहे एम्प्लॉयड स्टूडेंट है या फिर अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट है। एम्प्लॉयड स्टूडेंट है तो भी 2.5 लाख रुपए पर annum से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट है तो उसके पेरेंट्स और गार्जियन की इनकम 2.5 लाख रुपए पर annum से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, right? Now what is the amount of scholarship which is being provided? So if it is a case of degree or postgraduate level professional course, then academic allowance 10,000, tuition fee 10,000. Other professional course leading to degree, diploma or certificate 8,000, 5,000, total 13,000. Graduate and postgraduate course not covered in these groups 1 and 2, 6,000, 2,000, and all post matriculation non degree courses के लिए 5,000 का academic allowance मिलेगा. There is no tuition fee in that case, ठीक है। ये अगर याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, बट आई बिलीव कि एग्जामिनर विल नॉट गो इनटू दिस मच डिटेल, बट ठीक है। आई बिलीव दैट यू शुड रिमेंबर दिस टेबल, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप इसको याद कर लें, बाकी जाना तो नहीं चाहिए एग्जामिनर को इतना डिटेल में, बट ही हैज ऑल द राइट टू डू दैट। 30% सीट्स आर रिजर्व फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स एंड 5% फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज. The states will earmark at least 25% of the total outlay under the scheme for group 4 courses which include class 11th and class 12th, ठीक है जी, क्लियर है। अब आते हैं तीसरी स्कीम पे, which is central sector scheme of top class education in schools
फॉर ओबीसी ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ पहली दो जो स्कीम थी दोज वर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, नाउ दिस इज सेंट्रल सेक्टर फॉर व्हाट, फॉर प्रोवाइडिंग टॉप क्लास एजुकेशन वेयर इन स्कूल्स फॉर whom, फॉर ओबीसी ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट्स। ठीक है, so this objective this scheme has the objective of providing premium education, we are talking about premium education, premium education का मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, to the meritorious students, only to the meritorious students belonging to OBC EBC and DNT categories by funding their education from class 9th onwards till they complete class 12th। 9वीं के बाद से, ठीक है, उनको प्रीमियम एजुकेशन के लिए ओबीसी ईबीसी और डीएनटी बच्चों को मेरिटोरियस बच्चों को सरकार जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इनकम वही है, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल ओबीसी ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द टॉप क्लास स्कूल्स आर एलिजिबल, ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड their parents or guardians annual income is not exceeding rupees 2.5 lakh per annum, and again 30% seats are reserved for girls and there shall be a state wise merit list for each class for boys and girls separately, जो कि प्रिपेयर की जाएगी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द फाइनल एग्जाम ऑफ द प्रीवियस क्लास। तो अगर मान लेते हैं 9th क्लास के बच्चे को स्कॉलरशिप देनी है तो उसके 8th क्लास के मार्क्स को चेक किया जाएगा और उसके बेसिस के ऊपर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है फॉर एवरी क्लास 9th 10th 11th 12th, and then accordingly the students are provided with the scholarship, and remember जो ये मेरिट लिस्ट बनती है that is separate for boys and girls, लड़का और लड़कियों के लिए अलग से बनाते हैं ये लोग जो मेरिट लिस्ट है। ठीक है, अमाउंट ऑफ असिस्टेंस कितना है जी, अमाउंट ऑफ असिस्टेंस कितना है, मैक्सिमम 75,000 पर एनम पर स्टूडेंट फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th एंड मैक्सिमम 1,25,000 पर एनम फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आते हैं चौथी स्कीम पे जो कि है अब टॉप क्लास एजुकेशन इन कॉलेज। तो बहुत अच्छे से सरकार ने दिमाग लगा के स्कीम्स को मर्ज किया था। पहली स्कीम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, दूसरी स्कीम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, तीसरी स्कीम टॉप क्लास एजुकेशन सेंट्रल सेक्टर, चौथी स्कीम टॉप क्लास पहली तीसरी स्कीम थी टॉप क्लास एजुकेशन इन स्कूल, चौथी है टॉप क्लास एजुकेशन इन कॉलेजेस। ठीक है जी, और बेनिफिशियरी सेम है ओबीसी ईबीसी और डीएनटी, राइट। Again, to recognize and promote the quality education among students belong to these criteria by providing full financial support for pursuing higher education beyond class 12th। तो क्लास 12 तक सरकार ने दे दिया भाई सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन इन स्कूल्स में, 12 के बाद सरकार इस स्कीम के अंदर दे रही है, राइट। ऑल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आर एलिजिबल। ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूशन आर एलिजिबल का मतलब है कि केवल उन्हीं इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए सरकार पैसा देगी या फाइनेंशियल सपोर्ट देगी विच हैव बीन नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड इन नॉट इन एवरी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट ऑल द इंस्टीट्यूशंस आर नोटिफाइड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। टोटल एनुअल फैमिली इनकम वही है जी 2.5 लाख रुपए, ये तो सब में सेम है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। द स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एडमिशन इन अ फुल टाइम प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, ऑफ कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए सरकार कोई इसमें बेनिफिट नहीं देगी। In case the number of eligible student admitted exceeds the number of slots allotted to the institution, the scholarship will be restricted to the top students only। ठीक है, मान लेते हैं 100 सीट थी, ठीक है, और एलिजिबल हो गए जी 120, तो जो टॉप 100 है उनको मिल जाएगा, राइट। 30% रिजर्व है गर्ल्स के लिए और बेनिफिट जो है वो 2 सिबलिंग्स को मिलेगा, अब वो चाहे 2 लड़के हो या चाहे 2 लड़कियां हो। यहाँ पे वो गर्ल्स और बॉयज वाला जो है डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसा मोटा जाता है सरकार का। ठीक है, देखो भी कितना मोटा जाता है। ट्यूशन सबसे पहले तो प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन है तो 2 लाख रुपए पर 2 लाख रुपए मैक्सिमम। कमर्शियल पायलट के लिए भी सरकार देती है 3.75 लाख का अमाउंट ऑफ असिस्टेंस। ट्यूशन फी एंड नॉन रिफंडेबल चार्जेस। फिर लिविंग एक्सपेंस 3,000 पर मंथ पर स्टूडेंट, जब तक की कोर्स कंप्लीट नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट है। बुक्स एंड स्टेशनरी 5,000 पर एनम पर स्टूडेंट, जब तक की कोर्स कंप्लीट नहीं होता। और लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए भी सरकार देती है 45,000 रुपए मैक्सिमम। ठीक है, तो बहुत अच्छा खासा इसमें सरकार जो है वो सपोर्ट करती है स्टूडेंट्स को, एंड दैट इज वाई वो जो गर्ल और बॉय वाला जो जो कंडीशन था इससे पहले वाली स्कीम्स में वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए नाउ द लास्ट सब स्कीम इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर ओबीसी बॉयज एंड गर्ल्स। नाउ प्लीज माय डियर फ्रेंड्स डू रिमेंबर इन द 5th सब स्कीम द beneficiaries are only the OBCs। ठीक है, the primary beneficiaries are only the OBCs, however
हम आगे पढ़ेंगे सेकेंडरी बेनिफिशियरीज और भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड दिस स्कीम इज फॉर फॉर प्रोवाइडिंग हॉस्टल फैसिलिटीज टू द OBC students belonging to obviously the socially and educationally backward classes, especially from rural areas, so that they can have the access to the quality higher education. All right, the students belonging to the central or state or UT list of OBC and who do not belong to the creamy layer of course are eligible. And yes, I was I was telling this thing, OBC तो primary beneficiaries है ही, ठीक है। If the seats which are reserved for OBC remain vacant, then the seats would be filled up in this preference. पहले आएंगे DNT स्टूडेंट्स, फिर आएंगे ST, फिर आएंगे SC और फिर आएंगे EWS, ठीक है। यानी कि ऑल दीज आर सेकेंडरी बेनिफिशियरीज। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हमसे कोई पूछे कि भाई इस स्कीम के बेनिफिशियरीज कौन होते हैं, हु आर द एलिजिबल बेनिफिशियरीज, तो आप OBC लिखेंगे, ठीक है। Hostels will only be made available to the students who are pursuing post matric level studies, 10वीं के बाद ही मिलेगा, and 5% of the total seats should be reserved for students with disabilities, ठीक है। अब सवाल है जी कॉस्ट क्या होगी हॉस्टल की, एक सीट के लिए सरकार कितना सपोर्ट कराएगी। सो इफ द हॉस्टल इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न और रीजन और हिमालयन रीजन, 3.5 लाख पर सीट, rest of the country 3 lakh per seat. The amount of the grant per seat shall be released in 3 installments which are 50, 45 and 5, right? पहले 50%, फिर 45%, फिर 5%, and last but not the least there will be a one time non recurring grant of 2500 per seat for providing फर्नीचर और इक्विपमेंट टू दी हॉस्टल्स, ठीक है। अब भाई होस्ट खाली दीवार खड़ा करने से थोड़ी होगा, उसके अंदर फर्नीचर या फिर इक्विपमेंट्स भी तो लगाने पड़ेंगे कि नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है। All right, my dear friends, I hope PM Yashasvi scheme is clear. I hope you guys will not forget this scheme. बहुत बहुत सारा कंटेंट है इसके अंदर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चीजें सिंपल है। एलिजिबिलिटी सब में 2.5 लाख है, कोई भी स्टूडेंट डुप्लीकेट स्कॉलरशिप नहीं ले सकता, मतलब अगर ऑलरेडी ले रहा है तो नहीं ले सकता। OBC, EBC और DNT के लिए है ये, एक्सेप्ट the last scheme which was for constructing the hostel for only the OBC candidates, ठीक है। स्कॉलरशिप अगर मिलेगी तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए मिलेगी, स्कॉलरशिप अगर मिलेगी तो इंडिया में पढ़ने वालों को ही मिलेगी, ठीक है। 2 लड़कों को ही मिलेगी मैक्सिमम, ये रेस्ट्रिक्शन गर्ल्स के लिए नहीं है। हाउएवर ये अगर टॉप क्लास एजुकेशन फॉर कॉलेजेस की बात होती है तो ये 2 बॉयज या 2 गर्ल्स वाली नहीं, ये 2 सिबलिंग्स वाली बात हो जाती है। सो बेसिकली अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कॉमन हेयर, ठीक है। बस आपको जो याद रखना है वो रखना है अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। वो सब में अलग अलग है तो वो आपको याद रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, अदरवाइज देयर आर अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग थिंग्स इन ऑल दीज 5 सब स्कीम्स, ठीक है। आई होप माय डियर फ्रेंड्स द स्कीम इज क्लियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे विद अ न्यू स्कीम फ्रॉम आई डोंट नो विच मिनिस्ट्री, हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस हो या फिर हो सकता है विल पिक अप द नेक्स्ट मिनिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच। एंड यस, इफ यू वांट टू हैव द PDF, if you want to have the PDF of this class, just scan this QR code. Just scan this QR code, my dear friends, and join the Telegram channel to get the PDF. Thank you very much. Goodbye. Take care and God bless.